حدیث نمبر 8 عن معاذ رضی اللہ عنہ قال، کتاب میں دیکھ کر سنیں آپ لوگ جو میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر میں آپ حضرات کو یاد کرا دوں، جہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے، آپ تمام حضرات، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ تمام حضرات بھی درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر شخص درود شریف پڑھے، اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ذہن میں یا دل میں پڑھ لے تو اس کو قراءت کہتے ہیں، نہیں، اس کو قراءت نہیں کہتے۔ قراءت کے لیے آدمی زبان سے بھی کہے تو اپنی زبان سے بھی کہے، بھلے آواز سے کہے یا کم آواز سے کہیں، لیکن آپ درود شریف ضرور پڑھیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ عن معاذ رضی اللہ عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق علیہ۔ حضرت معاذ، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر شرح کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عفیر نامی دراز گوشت پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ یہ حدیث شریف اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چلیے اس کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی حدیث ہے صحابی رسول حضرت معاذ۔ یہ کون ہے؟ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی، آپ کا نام ہے، یہ حضرت معاذ جو راوی ہے ان کا نام ہے معاذ بن جبل، راوی کا نام ہے صحابی رسول معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری، معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری، معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی تعداد خزرجی اور انصاری لوگ کی ہی ہے۔ انصار وہ کہتے ہیں جو مدینہ منورہ میں حضور کا استقبال کیے تھے، اہل مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کا استقبال کیے تھے مکہ سے آنے پر، وہ انصار ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی تعداد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو قبیلے وہاں پر رہتے تھے مدینہ شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ ایک قبیلے کا نام اوس ہے اور ایک قبیلے کا نام خزرج ہے۔ اوس قبیلہ مدینہ منورہ کا 30% حصہ کور کرتے تھے، 30% آبادی اوس کی تھی، اور خزرج قبیلہ 70% تھا۔ پھر باقی یہود اور دیگر مذاہب کے لوگ جو وہاں پر رہتے تھے، یہود وغیرہ بھی آ کر رہتے تھے، یہ اصلاً مدینہ کے لوگ نہیں تھے، یہ باہر سے آ کر بسنے والے لوگ تھے۔ اصل مدینہ سے رہنے والے، یثرب تھا نا قدیم نام، اصل مدینہ کے رہنے والے یہ دو قبیلے اوس اور خزرج، اور خزرج 70% تھے، اور تو کیونکہ وہ 70% تھے اور مہاجرین ان کے مقابل میں کم ہیں، اوورآل اگر صحابہ کرام کی اگر تعداد دیکھیں گے تو سب سے زیادہ آپ کو خزرجی انصاری صحابہ ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خزرجی اور انصاری صحابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على حمار يقال له عفیر۔ آپ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، جیسے کہ شیخ الاسلام نے
उफैर नामी सवारी पर मैं हुजूर के पीछे बैठा। शेखुल इस्लाम जैसा कि उसका नाम दिए हैं दराज गोश। दराज गोश, दराज गोश, गोश कान को कहते हैं। दराज गोश वो लंबे कान वाला जानवर, इस तरह से लंबे कान वाला जानवर। मसला ये है, ये इस तरह से लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत क्या है। लफ्ज़ हिमार हदीस शरीफ में लफ्ज़ हिमार है और इसका माना बिल्कुल क्या कहते हैं वाज़ेह है कि ये गधा था। कदीम ज़माने में घोड़ा, गधा और खच्चर, ये तीन जानवर, घोड़ा, खच्चर और गधा, ये तीनों जो है इंसान की सवारी के लिए होते और ये बहुत अच्छी सवारियाँ थी, बहुत अच्छी सवारियाँ। और ये तीनों जानवर जो है इंसान के बड़े मुतीअ फरमाबरदार है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह नहल में 14वां पारा सूरह नहल में भी अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाया है, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना। ये घोड़ों को, खच्चरों को और गधों को हमने बनाया ही इसलिए है ताकि तुम उस पर सवारी करो और ये दिखने में बड़े खुशनुमा होते हैं जी। वजीना, ये तुम्हारे लिए जीना भी होता है और ये तुम्हारे सवारी का इंतज़ाम होता है। तो कदीम ज़माने की सवारियों में ये थे। लेकिन आज के ज़माने में, जदीद दौर के अंदर, क्योंकि लफ्ज़ गधे को गलत इस्तेमाल में ज़्यादा ले लिया गया। जैसा कि एक परिंदों में एक उल्लू है, उल्लू परिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो निहायत समझदार, तेज़, चालाक परिंदा है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत मीनिंग में हो गया। अब अगर किसी को बेवकूफ़ कहना है तो उसको उल्लू कहा जाता है। तो अब किसी को उल्लू से मुशाबहत देना ये सही नहीं होता है। इसलिए यानी अब आज के ज़माने के हिसाब से उसको थोड़ा सा वो लफ्ज़ से एहतियात करना पड़ेगा। इसी तरह से शेखुल इस्लाम ने भी अदब के तौर पर यहाँ पर दराज गोश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बजाय असल वर्ड यूज़ करने के, कि जानवर तो वो अच्छा है और सवारी के लिए ही बनाया गया है, सवारी करने के लिए और उस पर सामान लाद के ले जाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ज़माने हाल में उसका इस्तेमाल ज़रा ठीक नहीं है, इसलिए उसको उसके यानी असल लफ्ज़ की वजह दराज गोश का लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और उसका नाम था उफैर। पहले ज़माने में अपने अपने सवारियों में होते हैं, घोड़े पालते हैं तो उसका सवारियों के नाम रखते हैं। फ़क़ाल या मुआद, वो कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके पीछे, हुज़ूर सवारी में आगे थे और वो हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु पीछे बैठे थे। सवाल कर रहे हैं कि हल तदरी हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही व मा हक़्क़ुल इबादी अला अल्लाह। ऐ मुआद, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का क्या हक़ है बंदों के ऊपर, यानी बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अल्लाह के लिए करें, वो बंदों की दोनों के रास्ते हैं। क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। हज़रत मुआद कहते हैं मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, अल्लाह व रसूलुहु अअलम। तो जब कभी कोई मसला सामने दरपेश हो, कोई सवाल हो दीन से मुताल्लिक़ या कोई भी काम से मुताल्लिक़ और हमको नहीं मालूम हो, तो अल्लाह व रसूलुहु अअलम कहना चाहिए, अल्लाह व रसूलुहु अअलम। हमारे पास आम क्या है ये बात कि हम अल्लाह आलम कहते हैं, अल्लाह आलम है, हमको नहीं मालूम, अल्लाह आलम। अल्लाह आलम भी कहें, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सहाबा का तरीक़ा नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हमेशा अल्लाह व रसूलुहु आलम कहे हैं। कहीं अल्फाज आगे पीछे है अल्लाह आलम व रसूलुहु, आपको हदीस शरीफ में ये भी मिलेगा अल्लाह आलम, अल्लाह आलम व रसूलुहु या अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो आप ये याद कर लीजिए, यहाँ पर जो इबारत है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जब कभी कोई सवाल सामने आए, उसका जवाब नहीं मालूम हो, तो ये अल्फाज कहना चाहिए अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। क़ाल, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदू, अल्लाह का ये हक़ है बंदों की गर्दन पर, बंदों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की इबादत करे, वला युशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। इबादत के अंदर किसी को शरीक नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला का हक़ है कि हर बंदा उसी को माने और उसके साथ किसी और का शिरक न करे। फिर फरमाते हैं वह हक़्क़ुल इबादी अल्लाह, और अल्लाह पर बंदों का हक़ क्या है कि बंदों के लिए क्या करेगा अल्लाह ताला, अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिक बिही शैआ, जो बंदा भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला उसको हरगिज़ अज़ाब नहीं देगा। देखिए शिर्क ऐसी चीज़ है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ने शिर्क किया हो, छोटा शिर्क किया हो या बड़ा शिर्क किया हो, जो शिर्क करता है उसको सज़ा होना यकीनी है। जो शख्स भी शिर्क करेगा यानी अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करेगा, किसी और को मालिक हकीकी मानेगा, हकीकत में ताकत देने वाला, ग़िज़ा देने वाला, क्या कहते हैं, हयात देने वाला, मौत देने वाला, जी मुअस्सिर हकीकी, असल हकीकत में असरअंदाज होने वाला अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी
थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई मानता है तो वो शिर्क कहलाए। और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क माफ़ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करता। हर गुनाह माफ़ होता है, चोरी की गुनाह माफ़ हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो माफ़ कर दे। ज़िना माफ़ हो सकता है, चोरी माफ़ हो सकती है, छोटा बड़ा हर किस्म का गुनाह जी अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहा तो माफ़ कर देता है। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है, यानी अल्लाह के साथ किसी को इबादत करना, किसी और को भी मालिक हकीकी खालिक मानना, ये एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अलल ऐलान फरमा दिया कि ये गुनाह तो मैं नहीं माफ़ करूँगा, ये गुनाह मैं माफ़ नहीं करूँगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए कि अल्लाह का हक़ ये है कि बंदे उसी की इबादत करे और शिर्क ना करे, और अल्लाह की ज़िम्मेदारी ये है कि जो बंदा भी शिर्क ना करे, हाँ, जो बंदा भी शिर्क ना करे उसको अल्लाह तबारक व तआला सज़ा हरगिज़ नहीं देगा जी। अल्लाह युअज़्ज़िबु मन ला युशरिकु बिही शैअन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अफ़ला उबश्शिरु बिहिन नास, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, तो क्या मैं फिर लोगों को खुशखबरी न दे दूँ? जो यानी कलमा पढ़ लिए और जो लोग इस्लाम कबूल कर लिए और यानी गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे बल्कि तय कर लिए, और अल्लाह की तौहीद पे जो लोग आ गए, मैं उनको खुशखबरी ना दे दूँ? जाकर उनको अगर आप इजाज़त दिए तो मैं सबको खुशखबरी दे देता हूँ कि भाई तुम लोग अज़ाब से बच गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ला तुबश्शिरहुम, ऐ मुआज़ अभी उनको खुशखबरी मत दो। फ़यत्तकिलू, अगर इस तरह की खुशखबरी उनको दे देंगे तो फिर वो अमाल से दूर हो जाएंगे और अमल सालिह करना बंद कर देंगे और कहेंगे हम शिर्क नहीं कर रहे हैं, बस खलास जो है अब जब शिर्क नहीं कर रहे हैं तो अब अल्लाह ताला का अज़ाब तो हम पर नहीं होगा। तो अमल सालिह करना लोग बंद कर देंगे, अच्छे काम करना बंद कर देंगे। लिहाजा उनको खुशखबरी मत अभी से मत सुनाओ उनको। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि जो इंसान अपने आप को शिर्क से बचा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कहते हैं, अज़ाब से बचा लेता है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस शरीफ में गौर करने की ज़रूरत है कि हुज़ूर ख़ुद हज़रत मुआज़ को सुना रहे हैं कि ये हकीकत है, और फिर हज़रत मुआज़ से कह रहे हैं कि आप जाके लोग को मत बताइए। तो अब इसमें क्या किस्सा है, मैं आपको ये इसमें वजाहत करना चाह रहा हूँ कि मसला ये है कि हज़रत मुआज़ ये जो अर्ज़ किया, अफ़ला उबश्शिरु बिही नास, आप इजाज़त दें या रसूलल्लाह तो मैं पब्लिक को ये बता देता हूँ, लोग को, नास का लफ्ज़ है, पीपल को, पब्लिक को मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर भी ये बात याद रखिए कि हर बात हर आदमी से नहीं कही जाती है, कुछ खवास होते हैं और कुछ अवाम होते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ास लोगों में से थे। कौन से ख़ास लोग? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे, जिनकी ट्रेनिंग हो गई हुज़ूर के हाथ पर, इनका ईमान मजबूत हो गया, इनको नमाज रोज़ा ज़कात मालूम हो गए, इनको अखलाक हसना मालूम हो गए। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में अच्छा काम करना सीख लिए हुज़ूर के हाथ पर। ये झूठ नहीं बोलते, ये कारोबार में नाइंसाफ़ी नहीं करते, तिजारत में बेईमानी नहीं करते जी। ये बिल्कुल सच्चे, ईमानदार, बहादुर, शरीफ, बाअखलाक हो चुके हैं। जिनकी ट्रेनिंग सही ढंग से हो गई है उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। और जब ये हज़रत मुआज़ के मैं सबको सुना दूँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करती है। यही चीज़ यानी हमारे बुजुर्गान दीन और अहले तसव्वुफ में भी देखा जाता है, उलमा में भी देखा जाता। जब कहते हैं कि हर बात हर किसी को नहीं कही जा सकती है तो लोग को समझ में नहीं आता। ख़ास तौर पर हमारे गैर मुक़ल्लिद भाई जो है अहले हदीस वगैरह, ये हज़रात को बड़ा शदीद एतराज़ होता है कि भाई ये राज की क्या बात होती। देखो राज कुछ नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बता दिए, राज कुछ नहीं है। मसला ये है कि आप उस लेवल पर आ जाएं, आप उस लेवल पर आ जाए। अगर एक छोटे बच्चे को घर के लॉकर अगर बता दें यहाँ है तो वो घर के लॉकर के पूरे पैसों को विरासत में मिलना है, पर उसको नहीं बताया जाता है कि लॉकर में इतना है और अकाउंट में इतने हैं। छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता, छोटे बच्चों को बस हाथ में 5 रुपये दिए जाते, बेटे अपने लिए चॉकलेट ले लेकर आ जाओ। क्यों? क्या उसको नहीं देना है? नहीं, उसी का है ये। लेकिन वो बड़ा तो हो जाए, मेच्योर तो हो जाए, समझदार तो हो जाए। जब वो समझ के उस लेवल पर आ जाए, जब समझ के उस लेवल पर आ जाता है तब फिर उसके हवाले किया जाता है। यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और यही सुन्नत अकाबिर उलमाए किराम और अहलुल्लाह सूफिया किराम भी जो हम उनसे सुनते हैं कि भाई ये राज की बात है, ये सबसे नहीं कही जाती, तो वो नहीं कही जानी है इसलिए नहीं छुपाई नहीं जाती है, बल्कि इसलिए कि सुनने वाले अभी उसके अहल नहीं है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो सहाबा किराम थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे,
تو وہ تو ان کی تربیت یافتہ تھے، ان کو بتا رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عام مسلمان جو اسلام قبول کر لی تھے سارے لوگ، یعنی محدثین کی نظر میں جو سارے صحابہ ہی تھے وہ لوگ، لیکن ابھی حضور کی تربیت نہیں پائے تھے، تو ان سے یہ چیز کو مخفی رکھا گیا تاکہ وہ عمل صالح میں لگے رہیں۔ یہ حدیث تو امام بخاری اور مسلم متفق علیہ جیسے کہ بتا دیے، جہاں پر لفظ متفق علیہ آتا ہے وہ وہاں پر مراد ہوتا ہے بخاری اور مسلم۔